I think it's time for us to introduce who's none other than Dr. Chetan Kumar Mehta. Can we have a big round of applause first up for him, everyone? So as I begin further, I would just like to give a small note and a brief about who is he. I know that all of you already are aware of who is he, but still, let me just tell a little bit more about him in detail. So Dr. Chetan Kumar Mehta is a chairman and managing director of Lakshmi Diamonds Bangalore. Not just that, but also serving as the president of Jewelry Division India, IBJA. President Jewelers Association Bangalore. Can we please have a big round of applause for that, gentlemen? And also lovely ladies. Thank you. All right, I would now like to tell something more about him, and that is Dr. Chetan Kumar Mehta has given Lakshmi Group a motto, an aim to the world, that is passion, vision and inspiration, the three sutras of success. And he is also India's leading jewelry magazine that has covered Dr. Chetan Kumar Mehta in their cover page of the magazines. I think that definitely deserves another round of applause for him, everyone. Thank you so much. Well, he has a bag full of achievements if I have to keep talking about it. But then I'm just going to highlight few of them which are really, really important for all of us to know about. And that is he's awarded as Young Entrepreneur of the Year 2018 for Gem and Jewelry Trade Council of India, Ahmedabad. Excellence Award by GITCI. Can we have a big round of applause for all of his awards that I have been saying so far, and also awarded as Honorary Young Entrepreneur of the Year. That is by JNA, Hong Kong 2020. So another international that he's got. And now moving further, he's also backed himself as the Honorary Doctorate of Philosophy in Entrepreneurship from the elite University of Istanbul, Turkey. So ladies and gentlemen, I think I've already given enough information about Dr. Chetan Kumar Mehta. Can we have a big round of applause and call him for a quick fire chat that he's going to give up for the coffee here. And yes, I would like to hand over the stage to you, so you take the rest. Thank you, Bhavna, for the lovely introduction. So today, the conversation is very important. You have did a lovely you spoke about me, but I think there is one person who is more bigger in the size, in the weight, in voice, in structure and vision. Today the program is very special and very close to my heart. So the two reason is, before introducing him, I would like to tell you a few things that, Jayanti Bhai have been always less spoken. He speaks very less. Always he believed that work more, speak less. But today we are going to make him to talk more and listen less. You have to talk more, Jayanti Bhai. He is a very charming personality. He have that aura that people, when they come nearby him, he give that love to them, and always he makes sure that people are comfortable. But his journey was not so been easy as per me, because he have gone through a lot of process in his life. But today, having such a big show, being a president of association, being various association president, being chairman of one of the companies, 2-3 companies, and a grand, big success story we have heard about him. And people always, when they go to Jayanti Bhai, they just stand more. They just be very humble and talk to him by what you want. That is not people afraid of him. Actually, he respects everyone. Because Jayanti Bhai deserves a big respect, because always he have supported the industry. So today, in conversation with Dr. Chetan Kumar Mehta, this is a special edition of program, what I have started. Why I have started this? Because people have known everyone. But when it comes to the personalities, we don't know inside. Everyone see a good building is made, but you don't know how it is made, how difficult it was, how much problem and how much the problem you have faced, and he made sure that the building is got it done in a proper way. But today we are going to introduce, I would request, he's a mentor for the not only the Tamil Nadu industry, jewelry industry, he's the mentor for whole jewelry industry. A big round of applause. So I would request Jayanti Bhai to please join on stage. A big round of applause for Jayanti Lal Challani. So the name Jayanti Bhai Challani is the most popular name in the
South India in a country when it comes to our industry. People say he's very tough. Even I feel he's tough, no doubt. He's tough. But when it comes to few things, he's very tough. When it comes to the self-respect, you're more tougher than anyone else. I have seen that personally also. Jayanti bhai, I want to know, we all want to know, coming from Rajasthan, I think your father or your grandfather? Father. Your father moved. I think you born in Tamil Nadu, Yeah, you born brought in- up in Tamil Nadu. Yes, small village. Yes. You speak such a fluent Tamil. You read Tamil, and I came to know, I was happy you're a poet in Tamil. You have write a lot of poetry. The amazing part, and I want to ask you the question, Jayanti bhai, people coming from the North India to South India, can you just tell me what is your love for the Tamil Nadu? What is the love for the Tamil language? And I have seen a lot of North Indians have come from the other states. But you have adopted not Tamil Nadu from outside. You have adopted the Tamil inside. So can you just little bit brief about the Tamil language, the love for the Tamil, and coming from north to south, how can you overcome this language love? सबको नमस्कार. मेरे लिए तमिल लैंग्वेज एक बैरियर है ही नहीं है, क्योंकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं है. तो अच्छा, ये तो चेन्नई में भी नहीं है. मधुरानगरम करके एक छोटा एक गांव है, उसमें मेरा मतलब जन्म हुआ और वहीं मैंने स्कूलिंग किया. वहीं मैंने मतलब 40 साल तक मेरा उम्र गुजारा था वहाँ. तमिल में एक कहावत है, तमिल में बता देता हूँ. वंदारे वाड़ वैकुम तमिழகம். यानी मतलब जो भी आ रहा है उनका स्वागत करके, उनका जो जो चाहे वो करने के लिए, जो तमिल, जो यहाँ का जो लोग हैं, साउथ इंडियन स्पेशली तमिल पीपल इस लवेबल पर्सन से, वो लोग इतना अपने ऊपर इतना अफेक्शन करते हैं. चाहे आप राजस्थान में हो या और कोई भी स्टेट से भी आप इधर आ जाओ, आपको इतना ऊपर उनका जो अफेक्शन रहेगा, आप वापस यहाँ से नहीं जाएंगे. आपको मन लगेगा मैं यहीं सेटल हो जाऊँ, वैसा लोग है. तो मेरे लिए कोई तमिल का कोई बैरियर नहीं है. और अभी भी मैं यहाँ से, मेरा जो चेन्नई सिटी से मेरा जो गांव है 80 किलोमीटर्स दूर है. हर हफ्ते एक बार जाके आता हूँ. एक दिन मेरा पुराना दोस्त और मेरे जो भी मैंने खेला, जो स्कूल में पढ़ा, वो सब एक बार देख के आता हूँ. तो मेरे मन में एक तसल्ली आता है, भाई मैं अभी भी मतलब मेरे को जीवन दिया या मेरे को कुछ भी किया है ना, मेरा जो गांव है वहीं से है, वो मेरा मतलब मातृभूमि है. तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सो इससे हमें पता चलता है, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड दैट वेयर यू बॉर्न, दैट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रेस्पेक्ट. And the best part, Jayanti bhai, you told that weekly once, now also you go to your village. वैसे आपके चेले तो बहुत है, मैंने देखे आपके चेले भी बहुत है, आपके शिष्य भी बहुत है, और आप सबके गुरु भी हैं, ये भी हमें पता है. लेकिन ये जो आपका प्यार है, इससे हमें पता चलता है कि आप जब आप ये तमिल के बारे में बात करते हो तो आपकी आंखें भर आती है, आपको बहुत इससे बहुत प्यार है. लेकिन जयंती भाई, हम ये जानना भी चाहते हैं कि सबका एक बचपन होता है. आप वो गांव में पैदा हुए, बड़े हुए, आपका बचपन कैसा रहा? अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आप 10th स्टैंडर्ड तक, आप कैसे थे, आपके कैसे दोस्त थे, और आपका बचपन कैसे निकला? खुशी थी, दुख था, क्या था? या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली के साथ क्या था? ये थोड़ा, बिकॉज सबने जयंतीलाल छल्लानी को जानते हैं, अंदर के जयंतीलाल छल्लानी को कोई नहीं जानता है. हम अंदर के जयंतीलाल छल्लानी को जानना चाहते हैं. ज़रूरी है. मेरा बचपन, मैं तमिल मीडियम में, पहले मैं ये बताता हूँ, मैं तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ. एकदम नॉर्मल स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल. कोई ज़्यादा मतलब वहाँ का कोई पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा मतलब इतना नहीं था. झोपड़े में स्कूल था. जो स्कूल था वो बिल्डिंग भी नहीं था, झोपड़ी था. उसमें मैंने पढ़ाई किया और बहुत अच्छा था उसका जो लाइफ. उस टाइम में टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं. दोस्तों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, यही था. और जब थोड़ा थोड़ा मतलब
सिक्स सेवन्थ एट जब मैंने गया, थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया तो दुकान जाना चालू किया, पापा के साथ थोड़ी देर टाइम निकालना चालू किया। वैसा मतलब बहुत अच्छा था लाइफ। वो लाइफ कभी भी मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि अभी देखो जो सिटी में लोग जो मतलब पढ़ाई कर रहे हो, सिटी में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी हर एक 3 साल में पेरेंट्स ने स्कूल चेंज कर देता है कोई कारण वजह से। इससे अच्छा पढ़ना ये स्कूल में जाओ, और 10th तक एक पढ़ के 11th एंड 12th के लिए दूसरा स्कूल, 1 to 5 तक एक स्कूल। वैसा मेरा वैसे नहीं है, हम एक ही स्कूल में पढ़े थे तो मेरे मालूम है भाई, दोस्त लोग सब साथ में एक साथ 10 साल 12 साल हम साथ में गुजारे हैं, तो वो जो दोस्त हम नहीं भूल सकते। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ था हमारा। जयंती भाई, पिताजी का क्या बिजनेस था जयंती भाई जब आप उनके ऑफिस दुकान जाते थे? जो गिरवी का था और छोटा स्मॉल टाइम ज्वेलर था, बहुत छोटा था, खास कोई नहीं था। तो वैसे आप पैदाइश ज्वेलरी हैं फिर? हाँ, वो तो जब मैंने पैदा हुआ उस टाइम छोटा ज्वेलरी था। अच्छा, लेकिन ज्वेलर थे? ज्वेलर प्लस पान ब्रोकिंग, पान ब्रोकर, फाइनेंस और ये दोनों? हाँ, बस। वो पहले हमारे ज़माने में यही, आपके ज़माने में यही होता था कि हाँ। जो भी राजस्थान या नॉर्थ इंडियन से आता था, या तो गिरवी का धंधा करता था, या कपड़े का था, या फिर हाँ, सोने बस चांदी का था। गिरवी का ही था, और साथ साथ में सोना छोटा मोटा काम कर लेते। जयंती भाई, ये तो आपने अच्छा बोला कि बचपन अच्छा था, ये तो मैं समझ गया, अच्छा का क्या मतलब, लेकिन क्योंकि आप इतना अभी साइलेंट लगते हो तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो लीडरशिप क्वालिटी है आपकी, ये जो है ये बचपन से आपके पास थी, या फिर आपको लगता था कि मैं लीडर ही बनना चाहता हूँ? क्योंकि आप कहीं पर आप किसी से भी बात करोगे तो आपके सामने कोई भी खड़ा रहता है तो एक बार आपको रेस्पेक्ट करके एक मिनट चुप हो जाता है कि जयंती भाई क्या बोलते हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो ये जो क्वालिटी है लीडरशिप की, ये बचपन से थी आपके पास? और कितनी मस्ती कितनी करते थे आप? मस्ती और तो पिटाई की है कभी? मम्मी पापा से पिटाई हुई है? नहीं, मम्मी पापा ने कभी भी मेरे को पीटा नहीं, क्योंकि मेरा माँ और मेरा पिताजी मेरे ऊपर इतना मतलब अफेक्शन था। मेरा पिता तो मेरा दोनों भाई कभी भी पिटा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मस्ती करने वाला हूँ, और मैं घर में बहुत सबसे छोटा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ। मैं अभी बोल देता हूँ, साइकिल में मेरे कोई भी साइकिल नहीं सिखाया, मैं खुद ने सीखा हूँ। स्विमिंग मेरे कोई भी नहीं सिखाया, मैं खुद सीखा हूँ, क्योंकि मेरा गांव में बहुत बड़ा तालाब है, लेक में, उसमें खुद मैंने स्विमिंग सीखा। मेरे कोई कभी भी स्विमिंग सीखा नहीं, कोई भी। साइकिल भी वैसा ही, मैं बहुत मस्ती करता था स्कूल में। सच पूछ रहा हूँ तो आई एम SLC फेल, मैं SLC फेल किया हूँ। मेरा जो क्लास मास्टर मेरे को बहुत सुनाया था उस टाइम पे, तुम ऐसा पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा तमिल के ऊपर इतना एक अफेक्शन था। क्लास में जो यहाँ का जो लड़का, तमिल लड़का, मेरे को जो इंटरवल में प्रेम से पीटते थे। क्यों मालूम? क्योंकि वो लोग बोलते थे भाई तमिल टीचर मेरे को डांट रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लोग से पीछे तुम मारवाड़ी होके भी अच्छा पढ़ रहे हो, तो वो बोल रहा है भाई देखो मारवाड़ी लड़का तुम्हारे से भी अच्छा तमिल पढ़ रहा है, तुम यहाँ से नहीं बराबर नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए उसको एक मतलब पनिशमेंट जैसे उसको गाली देते थे तमिल टीचर। जयंती भाई, ये सही बात है कि आप SLC फेल हैं? बिल्कुल फेल हूँ। लेकिन आप SLC फेल होके पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, फिर हम लोग पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं जयंती भाई? यस, ये बात एकदम, पढ़ाई और कॉलेज इसका और कॉमन सेंस का कोई संबंध नहीं है। कॉमन सेंस इज द डिफरेंट सब्जेक्ट। लोगों को मतलब जो भी कोई भी हो, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादा पढ़ लिया भाई, हमारे ऊपर मेरे को सब कुछ मालूम है, ये बहुत गलत है। सब चीज़ मालूम रहना एक अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है। मेरे को एक्सपीरियंस मेरा पढ़ाई है कि बहुत सारा मेरा जो दोस्त लोग या मेरे बुजुर्ग मेरे को सिखाया है, उनसे मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ। स्कूल में जो कम पढ़ा हूँ, बाकी पढ़ाई सब मेरे जो दोस्त को लोग साथ या बिजनेस में जो मेरे से सुपीरियर थे उनसे मैं काफ़ी चीज़ सीखा हूँ। तो मेरे लिए पढ़ाई कोई बहुत महीना नहीं रखता, कोई बैरियर नहीं है भाई, मैं जो आगे बढ़ने के लिए या आगे कुछ काम करने के लिए। सो जयंती भाई, थैंक यू। मेरे को लगता है वेरी नाइसली ही सेड दैट कॉमन सेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, and accepting that I am failure in 10th standard, you need one big heart to tell that. A big round of applause for a gentleman. Always I say a success comes from the failures, so always understand the failures to become more success. जयंती भाई, मैंने सुना कि आप घर से भाग के आ गए? नहीं भाग के, या हाँ
नहीं नहीं, मुझे मेरी याददाश्त थोड़ी कम है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपसे मैं डिटेल जानना चाहूँगा। नहीं, मैं चेन्नई आने का भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मैं गांव में बहुत मस्ती कर रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला, भाई तुम यहाँ रहने का लायक नहीं है, तुम भाई के साथ चेन्नई चले जाओ, वहाँ जाके धंधा देखो। वैसे ही मैंने चेन्नई आया, और उस टाइम मेरा शादी भी हो गया, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो बच्चों को भी यहाँ मतलब स्कूल में पढ़ाना है, तो दोनों ही काम हो जाएगा, तुम चेन्नई चले जाओ। वैसा मैंने चेन्नई आया, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, क्योंकि वो लोग अकेला भी गांव में रह के मेरे को भेज दिया, साथ में कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स 2 ही जने थे वहाँ पे, मेरे को भी भेज दिया ज़बरदस्ती। मेरे को इच्छा ही नहीं था चेन्नई आने का, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती से चेन्नई भेजा आगे पढ़ाई करने के लिए, आगे मतलब धंधा बिजनेस करने के लिए। टुडे यू आर रूलिंग द चेन्नई। जयंती भाई, व्हेन यू केम, आप चेन्नई आए, आपके पास, आप भाई के साथ थे आपने बताया, हाँ, आपके पास कितना पैसा था उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब आपने कोई, और पहले तो आपके दिमाग में ये बिजनेस करने का कैसे, क्योंकि आप ज्वेलर तो थे, आपके अंदर खून में कहीं ना कहीं ज्वेलरी बसी हुई थी, आपके कितने पैसों से आपने बिजनेस चालू किया? नहीं वैसे तो मैं भाई के साथ ही बिजनेस कर रहा था। जब चांदी का होलसेल मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री भी रखा था यहाँ पे आके 2001 में, और अच्छा चला फैक्ट्री पार्टनर के साथ। और पार्टनर के साथ मैं 2003 में वापस बाहर निकल गया, वापस 1 साल में वापस छलानी ज्वेलरी करके होलसेल चांदी चालू किया टिल 2010। 2010 में जब फैमिली पार्टीशन हुआ, उस टाइम में बाहर आके वापस फाइनेंस चालू किया। यही मेरा मतलब बिजनेस। जयंती भाई, आप बचपन से वेल टू डू फैमिली से थे? अच्छे बोले तो खाना पीना उसकी कोई अपने परिवार में कमी थी, या उसमें कहीं आपने दिक्कत देखी? आप बचपन से बड़े हुए, वहीं कहीं आपको दिक्कत लगी कि आप अच्छे वेल टू डू परिवार से थे? नहीं, वैसे तो मेरा पेरेंट्स मेरे को बहुत अच्छा, मतलब उनको क्या था क्या नहीं था उसके बारे में कोई भी वो नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा मतलब रखा था, कपड़े से लेके। उस टाइम में मेरा बचपन का जो छोटो में 4 साल 5 साल 6 साल का जो फ़ोटो लेके देखता हूँ, तो खुद मेरे को सरप्राइज हो रहा है कि भाई मैं इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन से, इतना ब्यूटीफुल इसमें से कपड़ा पहन के फ़ोटो लिया हूँ। हो गया मेरा अभी 63 ईयर्स है उम्र। जब मेरा 45 साल 50 साल 55 साल के पहले फ़ोटो में देखता हूँ, तो मेरे को बहुत सरप्राइज लग रहा है कि भाई उस टाइम पे इतना बढ़िया मतलब कपड़ा पहन रहा था। तो मेरा पेरेंट्स मेरे को कितना अच्छा अच्छा कपड़ा मंगा के दिया है। कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं है? बचपन में आप अच्छा गुजरा है आपका? लाइफ में अभी तक मैंने कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं किया हो। मैंने तो यही एक चीज़ समझता हूँ, जो अब अभी अभी बैठे हैं यहाँ पे, जो बात कर रहा हूँ, ये टाइम अभी निकल जाएगा, दूसरा अच्छा टाइम आते रहेगा, आगे आगे और भी अच्छा अच्छा टाइम आते रहेगा। इसके लिए कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं है। कोई चीज़ लाइफ में कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं है। सब आने वाला एक दिन जाना ही है, लेकिन लाइफ में रिग्रेट कभी मत करो, जो है उससे बहुत खुशी रहो। जयंती भाई, मूवीज़ का क्या ख्याल है? मैं आपको मूवीज़ का कितना शौक है? सच बता दूं, करीब 20 साल में 4-5 मूवी देखा हूँ अभी तक। अच्छा, मूवीज़ का ज़्यादा शौक नहीं है? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा मतलब मेरा टाइम निकाला हूँ। ये मूवी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। जो भी होता है प्रैक्टिकल चीज़ें समझता हूँ। मूवी में मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसके लिए मैं वो पसंद भी नहीं करता हूँ। ये जयंती भाई, सब मुझे आज मैं सुबह आपसे मिल रहा था, तो आपसे गले भी मिला, हाथ भी मिला। आपका जो वो चेहरे का तेज है या चमक है, उसके पीछे का राज क्या है? मेरा वाइफ है। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। यस, हेमलता भाभी हैं? बिल्कुल मेरा वाइफ का ही राज है। कभी भी लाइफ में मेरे को बहुत खुशी, मतलब मेरा जो पेरेंट्स के बाद मेरे को लाइफ में कोई अच्छा मतलब समय दिया है, मेरे लिए कुछ भी सैक्रिफाइस किया, तो सिर्फ मेरा वाइफ है। उसके बाद में मेरा सन्स है, बेटा और बेटी। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, पूरा हिम्मत मेरा वाइफ का ही है। हर मेजर डिसीजन, मेरा बिजनेस एक्सपेंशन से लेके घर का शादी, सब डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेरा वाइफ का ही है। इज नॉट ए डोमिनेशन नेचर। उनका जो सजेशंस है या उनका कुछ विचार है, वो बहुत अच्छा है, मैं कभी भी एक्सेप्ट करने वाला हूँ।
तो मेरा सक्सेस भी उसके साथ साथ ही है। अच्छा, आज जयंती भाई आज एकदम खुशी खुशी घर जाएंगे आप। बिल्कुल, ऑलवेज। अच्छा जयंती भाई, ये भाभी के बारे में तो आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। वी वॉन्ट टू नो, यू हैव 4 kids, यस 3 sons and 1 daughter. यस। आप उनके बारे में क्या, आपके 3 बच्चे हैं और एक डॉटर, और डॉटर यू नो शी इज़ वेरी क्लोज टू यू, आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, हमने जब भी देखा है आपको बहुत ज़्यादा। वैसे बाप तो, मेरी भी बेटी है तो लाडली बेटियाँ ही होती है बाप की, वो मुझे पता है। जब आप आपके 4 बच्चों को देखते हो और आपका भी बचपन बीता है, वो समय और अब का समय कैसा लगता है? आपके बच्चे आपके साथ कैसे हैं और उनके स्वभाव से आपको क्या खुशी मिलती है? देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, दुनिया में सबके साथ एक एक चीज़ अपने सीखने को मिलता है। मैंने सीखा हूँ बहुत सारे लोगों से, सब लोग सीखते भी क्या करना है, मैंने सीखा हूँ क्या नहीं करना है। ये काफ़ी लोग मेरे को सिखा है भाई ये चीज़ हम लोग करना नहीं है। वो मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस या जो मेरा नॉलेज या मेरा जो हिम्मत, मैं मेरा बच्चे को पास ऑन किया हूँ और कुछ भी नहीं है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ भाई तू ज़्यादा पढ़ाई मत कर, ज़्यादा पढ़ाई करने से सिर्फ तुम्हारा किताब तुम्हारा लाइफ हो जाएगा। कॉमन सेंस लेके आओ, उसमें से पढ़ो, वही लाइफ रहेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए जयंती भाई के लिए। जयंती भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझना, काफ़ी लोग कहते हैं जयंती भाई को समझना थोड़ा नामुमकिन ही, मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। बिकॉज आपके अंदर कभी भी हम आपको देखते हो ना तो दुख झलकता है ना सुख झलकता है, आप समभाव के एक जैसे हैं। बारिश है तो भी एक जैसे, धूप है तो भी एक जैसे है। अब मैं जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते हैं, जीवन में आपका एक दुखद घड़ी जो आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुख, वैसे आप मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकल भी स्ट्रांग है, लेकिन एक इंसान होता है वहाँ कहीं ना कहीं टूट जाता है। आपका एक इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट या फिर बुरा इंसिडेंट या फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको एक बार पूरा हिला के रख दिया और आपको जयंतीलाल छल्लानी बनाने पे मजबूर कर दिया, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है? नहीं, वैसे इतना कठिन समय मेरे को अभी तक मैं लाइफ में देखा नहीं हूँ। फिर भी जिसमें कठिन में से जो कम कठिन वाला, लेकिन जो आपको लगता है ये मेरे लिए निकल गया, लेकिन वो थोड़ा दौर आपके लिए बहुत मुश्किल था, जो भी दौर हो आपका। हाँ, मेरा पिताजी का जो डेथ था वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक दुखी समय था। और मेरा मदर का, दोनों ही मेरे शेयर नहीं हुआ। अभी भी मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ मैं पेरेंट्स के लिए क्या किया और मदर के लिए क्या किया, मैंने सही मतलब सेवा नहीं किया हूँ, ऐसा मेरा कभी भी एक मतलब मन में अभी भी है। लेकिन मैं जो अभी ये इतना ऊंचाई पे हूँ तो सिर्फ मेरा पेरेंट्स का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल मैं ये बात को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो और भी मैं मेरे पेरेंट्स के लिए और भी अच्छा सेवा दे सकता था, वो उसमें कुछ कमी है करके मेरा मन कभी मेरे को एक बोलते रहता है बस। जयंती भाई, ये तो आपकी आंखों से झलक रहा है कि आपको रिग्रेट है कहीं ना कहीं, शायद इस ज़िंदगी की दौड़ में कुछ चीज़ें आप माँ बाप के लिए करना चाहते थे, नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। लेकिन ये तो एक माँ बाप गए, वो तो बहुत दुखद घड़ी सबके लिए होती है। जीवन में ऐसी कोई घड़ी फाइनेंस को लेके या परिवार को लेके जहाँ आपने ऐसा वक्त देखा और उसके ऊपर रेक्टिफाई किया, ऐसा कोई घड़ी है आपको कि ज़िंदगी स्मूथली चली है आपकी? नहीं, जब 2010 में हमारा जो फैमिली पार्टीशन हुआ उस टाइम में मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था। 2010 में तीनों बच्चे कॉलेज ख़त्म करके बिजनेस में आना रेडी था, लेकिन मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था उस टाइम पे। 2010 नवंबर में मैंने फाइनेंस चालू किया। मेरे पास और कोई बिजनेस ही नहीं था, ज़ीरो से, यानी मतलब बिजनेस में ज़ीरो हूँ, नॉट फाइनेंशियली ज़ीरो। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई 50-100 साल का पेड़ी भी नहीं है मेरे पास। जब 2010 में फाइनेंस चालू किया, 2013 में छलानी ज्वेलरी चालू किया। ये छलानी ज्वेलरी चालू करने का भी मेरा वाइफ का ही निर्णय था, उनका ही मतलब डिसीजन था भी ज्वेलरी चालू करना है करके। 2013 में चालू किया, हो गया 10-11 साल, अभी 11th ईयर चल रहा है। बस जब हमारा जो ज्वेलरी चालू किया एकदम वो छोटा मतलब एक गली था उसके अंदर ही चालू करे, तो भाई
वही बोला जरूर चलेगा, यहीं करना है मेरे को, वही कहीं और कहीं नहीं करना है। तो इतना ऊंचे जाने का एक ही कारण हमारा तीनों बच्चों का हार्ड वर्क और वाइफ का गाइडेंस और मेरा सपोर्ट, मेरा हिम्मत। क्या बात है जयंती भाई। जयंती भाई, ये तो बैड टाइम का बात हुआ या फिर कुछ था नहीं। इन 14 years you became the popular brand of South India. One happy moment of your life where you became very happy. That day was, you felt this is, yes, this is a wow moment. मेरी लाइफ के लिए wow moment है। कोई भी ऐसी घटना आपको याद है? नहीं, खुशी का समय, बराबर है। यस, खुशी का समय। जब मेरा सगाई हुआ, मेरा पिताजी ने यस बोला, वो दिन मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि मेरा लव मैरिज। क्या बात है। हाँ, ये हमको मालूम ही नहीं जयंती भाई, ये छुपा रस्तम वाला बात है आपका। जब मेरा पेरेंट्स ने हाँ भरा, उस दिन मेरे लिए आज अभी भी नहीं भूलूंगा। करीब 8-10 लड़की मैंने देख के मना कर दिया। पिताजी को बहुत कन्फ्यूजन था कि भाई ये क्यों हर लड़की को देखता है, कुछ मतलब मना कर देता है, हर देखता है मना करता है, क्या बात है। तो मेरा सिस्टर का हस्बैंड है, मेरा बहनोई है, उन्होंने फिर मेरे पिताजी की बात बताया, भाई आपको यही बात है, भाई वो और कोई लड़की से प्यार करता है, तो आप क्यों इतना कोशिश कर रहे हो, उनसे हाँ भरो। तो पिताजी ने वो चीज़ के लिए सोच समझ के हाँ भरा। वो दिन मेरे लिए बहुत लवली डे था। तो जयंती भाई, ये तो आपका अंदर का राज है। ये बोले तो आपका लव कितने साल चला जयंती भाई? 6 साल। 6 साल, क्या बात है। तो ये अपना कहीं, कहाँ आपको भाभी जी कहाँ मिली, कहाँ आपने देखा उनको, कहाँ ये प्यार हुआ आपको? क्योंकि आपका खुशी का दिन तो मुझे पता चल गया, लेकिन जब आपको कहाँ भाभी जी कहाँ मिले? मेरा सिस्टर का क्लोज रिलेटिव में ही है, तो मेरा सिस्टर घर में जा रहा था, तो वही मेरे को मतलब फर्स्ट इंट्रैक्शन हुआ, बात हुआ, मिलना हुआ, वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। देखिए, कोई बोल सकता है क्या जयंती भाई लव मैरिज कर सकते हैं? हमें एकदम सीधे साधे लगते, लेकिन आज अंदर निकला है। 6 years यू हैड अ लव एंड यू हैव गॉट मैरिज। पापा मम्मी मान गए फिर? हाँ। लेकिन थोड़ा टफ हुआ आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कोई टफ नहीं, कभी मुंह खोल के बोला ही नहीं मैंने कि मुझे शादी करनी है। आप खाली रिजेक्ट कर देते बस। ये रिजेक्ट का मतलब ये है कि इसकी और दूसरी लड़की नहीं, पसंद उस टाइम में सब इतना बोलने का हिम्मत नहीं था। और सिर्फ टेलीफोन कॉल बुकिंग करके वेटिंग करके बात करना पड़ता था। नो मोबाइल फोन, नथिंग, कुछ भी नहीं था, नो कम्युनिकेशन। पोस्टल कार्ड एक था, नहीं तो इनलैंड लेटर था। इनलैंड लेटर में हम कभी लेटर भेज देते, किसी के हाथ में नहीं मिलना करके, मतलब वो लाइफ अलग था एकदम। भाई, भाभी को तमिल आती थी क्या? बिल्कुल। तो आप तमिल में लिखते थे? हाँ, यस। क्या बात है। यस, तमिल में लव लेटर। तो कभी हम लोग चाहेंगे कभी पुराने पत्र आपके हमको देखने को मिले? रहेगा, वाइफ के पास पूछना तो पड़ेगा। रहेगा अगर, तो भाभी के पास क्यों? हम लेके लेटर देखना जब भी- चाहेंगे। नहीं, लेटर जब भी मैं लिखता हूँ तो मेरा हाथ से तो निकल जाता है, उनके हाथ में रहेगा तो रहेगा बस। ठीक है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जयंती भाई। जयंती भाई, ये ऑल टाइम आपकी वन फेवरेट एक्ट्रेस? वैसे तो सिचुएशन के हिसाब के आपकी एक्ट्रेस चेंज होती होगी, मुझे पता नहीं अभी ज़्यादा, लेकिन वैसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है पहले और अभी? पहले के टाइम पे आप जो पसंद करते हो और अभी लेटेस्ट में आपको एक्ट्रेस कौन पसंद? मैं मूवी में बहुत मेरे को इंटरेस्ट कम है, फिर भी पुराना में अच्छे मतलब एक्टर्स थे, उसमें कोई फेवरेट करके नहीं है। तो जो आपको पसंद है, एक जो पसंद है। पसंद में वाइफ के सिवाय और किसी को किया नहीं हो। नहीं, वो तो अभी मुझे मालूम है आपको सेफली घर जाना है। एक तो क्या है, लव मैरिज भी है। नहीं, अभी तो क्या, लव मैरिज भी है और सेफली घर जाना है। लेकिन एक आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी जो आप बहुत ज्यादा पसंद करती थी? उर्वशी? उर्वशी थी? नहीं, एक्ट्रेस में फेवरेट था। पसंद की बात अलग है, फेवरेट अलग है। हाँ, पसंद सिर्फ भाभी जी है? हाँ, सिर्फ भाभी जी। लाइकिंग किसको थी आपकी? लाइक किसको? एक्ट्रेस कौन से एक्ट्रेस को लाइक करते थे आप? नहीं, लाइक नहीं करता, फेवरेट करता था। उर्वशी थी। जयंती भाई, आप ऐसे हमको घुमा रहे हो ना, पूरा इंडस्ट्री आपको देख रहा है। आप हमें बिल्कुल फेवरेट सही एक्ट्रेस बताओ बस। उर्वशी। उर्वशी। Yes. फेवरेट एक्टर ऑल टाइम? शिवाजी गणेशन है। शिवाजी गणेशन। यस।
जयंती भाई, एक पिक्चर जो आपको इंस्पायर करती है, आप कभी भी देखना पसंद करते हो, एक मूवी, चाहे वो हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, कोई भी हो अपनी लैंग्वेज, एक मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे आपने मूवीज़ कम देखी है, लेकिन एक मूवी जो आपको इंस्पायर करती है, अच्छी लगती है, पासमलर। क्या रीज़न है? उसमें जो शिवाजी का एक्टिंग और उनका जो बहन का जो ऊपर बहन के ऊपर प्यार और परिवार के ऊपर जो प्यार उसने जो मतलब एक्ट में बताया, वो अभी भी सामने दिख रहा है। मैं करीब वो मूवी देख के 45 साल 50 साल भी हो गया, फिर भी अभी भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। कभी भी आप वापस देखते हो, कभी आपका मन करता है वो हाँ, मूवी? कभी मैं वैसे तो मैं टीवी में कोई थोड़ी देर बैठ के ऐसे देख लेता हूँ, कोई पूरा ख़त्म करना का जरूर नहीं, कुछ चीज़ देख लेते बस। ओके। एक वैसे तो आपको जयंती भाई हमने बहुत अच्छे से देखा है, खाने में क्या बहुत ज़्यादा पसंद है जो आप 365 दिन खा सकते हो, फेवरेट डिश आपका? एनी डिश, देसी खाना। देसी? देसी फिर खाना। भी एक फेवरेट आइटम? दूध रोटी है। दूध रोटी? मीठा दूध या फीका दूध? दूध में शक्कर मिलाना पड़ता है, मीठा क्या होता है उसमें। दूध रोटी फेवरेट आप? एनी डे 24/7। आप कभी भी आपको खिला सकते हाँ, हैं? कभी भी मैं लेट में आ गया और कुछ चीज़ मैं ये नहीं लेता हूँ, सिर्फ दूध रोटी में मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए खाना बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मेरे लिए कुछ रोटी या तो बस है, इसके अलावा अचार एक कुछ छोटा चीज़ में भी मेरा काम खत्म कर लेता ऐसा हूँ। खाने का कोई स्पेसिफिक कोई नहीं? कोई नहीं, नथिंग। लेकिन देसी रोटी है, बिल्कुल देसी रोटी, देसी- अचार, रोटी, दूध, ऐसा चलेगा? हाँ, बस आपको? बस बस देसी रोटी। अगर अब जयंती भाई जब हम स्पोर्ट्स की बात करें तो एक गेम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी आप खेलना भी पसंद करते हैं? ओनली क्रिकेट। क्रिकेट? और सेकंड आके बैडमिंटन। फिर भी मैं जब छोटे से मेरा बहुत फेवरेट गेम आके क्रिकेट था, और मैं उस टाइम पे गांव में क्रिकेट टीम फॉर्म किया। वो उस टाइम में मतलब एक मैच चल रहा था, ये गांव से बाजू गांव का बीच में, उसका कैप्टन मैं ही था। बहुत मजा किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को मतलब क्रिकेट खेलने में। तो जयंती भाई ये जो क्रिकेट भी आपका फेवरेट है, बैडमिंटन भी है, लेकिन ये जो लीडरशिप क्वालिटी पे मेरे को आंसर अभी और अच्छे से चाहिए आपका। ये जो बचपन से आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी थी, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया कि ये मुझे लीडरशिप का शौक नहीं, मेरी एक पैशन है मेरे को, या फिर मैं लीडर बनना चाहता हूँ, या कैसा, या लोगों ने आपको फॉलो किया? क्योंकि ये आपके अंदर इनबिल्ट है। जैसे आप क्रिकेट भी थे, आप बोल रहे हैं कि मैं हेड था, मुझे लगता है स्कूल में भी आप ही सबसे ज़्यादा हेड करते थे लगभग। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी कैसे आपके अंदर आई जयंती भाई? पापा भी ऐसे थे कुछ? नहीं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आई? कभी आपने गौर किया कि ये मेरे अंदर? बिल्कुल। देखो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं कभी मेरा इम्पोर्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। जहीं भी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் தமிழில், நான் அதாவது அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து, உங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி உங்கள் பான்லேருந்து இருக்கா இல்லை எப்போ வந்ததுன்னாரு. நிச்சயமாக பான்லேருந்து இல்லை. பட் எனக்கு ஒரே ஒரு பழக்கம் இருந்தது, எங்கே நான் போகிறனோ அங்கே எனக்கு நான் முக்கியத்துவமாக நான் என்னை மாற்றிப்பேன். அது என்னுடைய சுபாவம். जहाँ आप जाते वहाँ इंपॉर्टेंस कर लेते? அதே மாதிரி ओके, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा मतलब मेरा इम्पोर्टेंस मैं बढ़ा लेता हूँ। मेरे को वैसा कोई एम नहीं है भाई मेरे को लीडर बनना, ये बनना वरना। समय के साथ चलना है, समय के साथ साथ जो भी उस टाइम में जो रहेगा उसके। जब मैं ज्वेलरी चालू किया, मैंने नहीं सोचा भाई ज्वेलरी में इतना बड़ा होगा, लेकिन मेरा एम था कि भाई हम अच्छा ही करना है करके। अच्छा करो, ऑटोमेटिक आपको मतलब वह जगह मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं जगह के लिए आप अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा करो जगह मिलेगा। मैं वैसे ही मेरा हर चीज़ हर जगह पे, यानी फैमिली, यानी फ्रेंड्स, या मेरा बिजनेस, या मेरा जो एसोसिएशन, किस में भी मैं जो पॉजिटिव में मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। नेगेटिव कोई बात किया तो मेरे से सहन भी नहीं होगा। मैं बोला भी थोड़ा हट जाओ, मेरे नेगेटिव सोचना भी नहीं, बात भी नहीं करना। और कोई भी बोलेगा मेरे पे थोड़ा मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, ये है वो है, मैं बोला भाई जितना तेरे से कोशिश होता है तू तो कर ले, तेरे से नहीं होगा उस टाइम मेरे पास बोल, मैं देखता हूँ, तब तक तू ही कर ले। जब उससे नहीं होगा वो काम जरूर मैं करके दे सकता हूँ। कुछ भी काम हो, कुछ भी, एनीथिंग आप समझ लो भाई मेरे से ये नहीं हो रहा है, उसके बाद मेरे पास आ जाओ, मैं उसका उपाय और रास्ता निकाल देता हूँ। वही वो मेरा जो मतलब इनबॉर्न क्वालिटी है। मेरा हिम्मत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम।
कुछ भी मैं कभी भी जब मैंने ज्वेलरी चालू किया, अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने भी इतना एडवर्टाइजमेंट इतना करने में हिम्मत नहीं है, मैंने पूरा किया हूँ। जितना पैसा कमाया, कमाने के पहले मैं उसे डबल पैसा मैंने खर्च कर लिया, ट्रिपल पैसा मैंने खर्च किया। मारवाड़ी का एक चीज़ होता है, भी पैसा कमा के खर्च करो, लेकिन खर्च करके बाद में पैसा कमाया हूँ। क्या बात है, बहुत बार तालियां हो जाए जयंती भाई। जयंती भाई एक क्वेश्चन है, सब लोग आपसे बात करते हैं, लेकिन जयंती भाई ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप एडमेंट हैं, ये आपके अंदर थोड़ा नेचर है कि आप अगर कुछ ठान लेते हो तो फिर करना है आपको, या फिर ऐसा है कि जो मैं बोलूँ वही होना चाहिए, ऐसा है, या फिर नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है तुझे, ये आपका नेचर? क्यों काफ़ी लोग जब बात करते हैं, मैं तो आपको खुले फोरम में पूछ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। काफ़ी लोग पीछे आगे, आपको आगे तो किसी की हिम्मत नहीं, वो ज़्यादा बात नहीं करते आपसे, सब पीछे बात करते हैं। मैं आप उनका क्वेश्चन आपके लाऊं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ है, कभी कभी जयंती भाई ने गौर किया है कि मैं जो बोलूँ वही होना है, मैंने बताया वही करना है, या फिर वो नेचर आपको कभी कभी ऐसा लगा, या लोगों की गलत फहमी है? नहीं, जो आप बोल रहे एकदम सही है। जो भी लीडर रहेगा वो लीडर ऐसे ही बन सकता है भाई, वो जो बोलेगा वो करेगा, वही लीडर हो सकता है। सबका काम वो कर लिया तो वो कहाँ लीडर बनेगा, वो तो गुलाम भी बनेगा। जो लीडर है वो सोचेगा वही काम कर, जो सोच रहा है वो काम हुआ तो ही वो लीडर है, नहीं तो कहाँ से लीडर है वो। लेकिन जिन पे सबको लेके चलना भी पड़ता है। वो तो मेरे पास बहुत खून में है, सबको लेके जाता हूँ। कोई भी नहीं बोल सकता भाई मेरे को छोड़ दिया, मैं बोला भाई चल आ जाओ, तुम भी मिल जाओ, आ जाओ। लेकिन जयंती भाई सब कहते हैं सबकी सुनना मन की करना। सबका भी सुनता हूँ, सबका मन का भी करता हूँ, और अपने मन का भी करते हैं। वो तो उसमें तो रह गए ना, सब में मैं थोड़ी बाहर हूँ, मैं भी उसका अंदर ही हूँ। तो लेकिन जब इंडस्ट्री ले लिया तो इंडस्ट्री का उन्नति और इंडस्ट्री आगे लेके आने में कितना काम करना, उतना मेरा मतलब पूरा तन मन धन से मैं काम करता हूँ। परिवार का हो, परिवार का भी वैसा ही है, बिजनेस का भी वैसा ही है, या दोस्त लोग में भी वैसा ही हूँ। मैं कभी भी जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं एक लीडर मैं खुद मेरे को सोच के वैसे ही काम करता हूँ। अच्छा, वो लीडरशिप आपको फील होता है, बस मैं लीडर, मुझे करना है। हाँ बस। वो लीडरशिप क्वालिटी है अंदर आपके। बिल्कुल। और बेबाक आप बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरा नेचर है वो, यस, सबको लेके चलता हूँ। सबको लेके चलता हूँ। जयंती भाई एक गाना जो आप कभी भी गुनगुनाते हैं, आपके दिल के बहुत करीब है, एक गाना जो आपको बहुत पसंद है, तमिल में एक हिंदी में, दोनों में, जो तमिल में बहुत ज़्यादा और क्यों, और हिंदी में एक गाना क्यों, जो आपको आप 365 चाहे उदास हो, या आपको वैसे तो उदासी है नहीं, मैंने आपको हमेशा एक जैसा देखा, आपका चेहरा कभी उतरता नहीं है, वो चमक तो रौनक आपके अंदर भगवान ने दी हुई है, लेकिन वो एक तमिल का गाना और एक हिंदी का गाना आपको जो पसंद है हमेशा? தமிழ் का गाना तो एक है भाई, கர்ணன்ல பாடுற பாட்டு, உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் கலங்காது என்பது அப்படிங்கிற பாட்டு। அதில் நிறைய अर्थம் இருக்குது, बहुत सारा मीनिंग्स है जो ये गाना में, जो लैंग्वेज समझता है वो ज़रूर समझ सकता है भी ये गाना कितना डेप्थ से अपना लाइफ के बारे में वो मतलब गाना किया गाया है करके। हिंदी में तो क्या है, हिंदी का तो एक गाना होता है ना जयंती भाई के बचपन से, एक गाना किसी का जो आपको गुनगुना, आपको अच्छा लगता है, आप गुनगुना लेते हो कभी एक गाना? नहीं, इतना तो मेरे को मन नहीं है, क्योंकि मैं सुनता हूँ उससे थोड़ा देर गा लेता हूँ, बस वो निकल जाता है हवा में ही। नहीं वो तो हाँ बस इतना ही है। वो है, फिर भी जयंती भाई एक गाना, चाहे वो अमिताभ का हो, रफ़ी का हो, किशोर दा का हो, या फिर कोई भी आपके सिंगर का जो आपको लगता है ये मेरे को ठीक लगता है, मैं 2-3 बार सुन सकता हूँ। वैसे तो आपने बताया नहीं, निकल वैसे जाएगा। तो पुराना गाना 2-3 बार नहीं है, हर बार सुन लेता हूँ, लेकिन इतना दिमाग में छिड़ाता नहीं, क्योंकि मेरे को जयंती भाई आप कुछ भी चीज़ ऐसे दिमाग में ज़्यादा चढ़ाते नहीं, उतार जल्दी लेते हैं आप, गाने को भी उतार लेते हैं आप। वो तो ही है, मेरा दिमाग में छोटा चिप है, उसमें ज़्यादा लोड नहीं करता हूँ। जो भी नया चीज़ आ गया, पुराना चीज़ वहाँ से निकल जाता है, और जो भी छिड़ाता हूँ सब पॉजिटिव आइटम ही छिड़ाता हूँ, नेगेटिव आइटम कभी भी दिमाग में छिड़ाता नहीं हूँ। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जयंती भाई। जयंती भाई ये अभी आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, पहले भी जो एसोसिएशन था उसके भी काफ़ी साल आप प्रेसिडेंट रहे, आपके अंदर वो लीडरशिप भी, आप लीडर भी हैं, लेकिन आगे आप किसको देखते हैं? जैसे आगे आप किसको आगे देखते हैं कि कोई मेरी जगह ले सकता है, कि
मैं मेरे बरोबर उसको मैं बना सकता हूँ, ऐसा कोई लीडर आप तैयार कर रहे हो आगे के लिए? है। नाम लेना चाहोगे आप? क्योंकि वो तो सबको सुनना है, क्योंकि देखना है कि जयंती भाई के लेवल में कौन वो सोच सकता है, कौन है एक आदमी जो आपको लगता है कि ये मेरे क्वालिटी का है। हाँ, जब जो है करके बोल रहा हूँ, ये फोरम में ही बैठा है। लेकिन नाम लोगे तो तैयारी होगी ना, उसमें क्या, उसमें कुछ नहीं है नहीं आपके। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें नाम लेने का कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक चीज है, उनको और थोड़ा फाइन ट्यून करना जरूरी है। ओके, तो आप तैयार करके फिर निकालेंगे हाँ, उनको। हाँ बिल्कुल, यस। पोस्टर बाद में रिलीज होगा। यस यस यस। पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बाकी है, बाकी नहीं है, बहुत बाकी बहुत है। बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं अभी तैयार हो रहा है खाली, लेकिन तैयार है नेक्स्ट लीडर। है। जयंती भाई, अब तो हो गई ये सब बातें पर्सनल, हमने सब देख लिया। GJIIF आपके लीडरशिप के अंदर सब कमेटी के साथ ये बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है। चेन्नई क्या स्पेशल है ज्वेलरी बाइंग के लिए, और लोगों को चेन्नई क्यों आना चाहिए? स्पेशली तमिलनाडु रिटेल ज्वेलरी का हब है। तमिलनाडु स्पेशली चेन्नई का जो उस्मान रोड है, वर्ल्ड मैप में उस्मान रोड का एक जगह लिया है वर्ल्ड मैप में। इंडियन मैप, तमिलनाडु मैप में नहीं है, चेन्नई का मैप में नहीं, मैं वर्ल्ड मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। उस्मान रोड, उसमें जितना बड़े बड़े ज्वेलर्स है, जो कारपोरेट्स कंपनीज है, स्पेशली तमिलनाडु में ज्वेलरी बाइंग, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, ये सब बहुत मतलब पसंद करते लोग हैं, तमिल लोग। इसके लिए तमिलनाडु बहुत प्रसिद्ध है भाई रिटेल ज्वेलरी के लिए। यहाँ जो एग्जीबिशन करना बहुत सही चीज़ है तमिलनाडु में, क्योंकि विழுப்புरम, कोयम्बतूर जो ज्वेलरी बनता है, और यहाँ थोड़ा दिन के पहले आके आम्बूर में जो स्टोन आइटम बनता था, जो नेल्लूर में कैसे भी स्टोन आइटम बनता, वैसे ही आम्बूर में क्लोज सेटिंग और ओपन सेटिंग का ज्वेलरी बनता था, उसका सब तमिलनाडु बहुत फेमस है। तो यहाँ जो रिटेल ज्वेलरी हब भी है, और यहाँ एग्जीबिशन करना भी बहुत ज़रूरी भी था भाई, क्योंकि ये इनका माल का जो प्रमोशन करने के लिए। ठीक है जयंती भाई, ये लेकिन इतने सारे एग्जीबिशन हो रहे हैं जयंती भाई, ये एग्जीबिशन को आपने जिंदा कैसे रखा है? क्या खूबी है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ GJIIF? देयर आर सो मेनी एग्जीबिशंस एवरीवेयर, एवरी 2-3 days यू आर सीइंग एग्जीबिशन हो रहा है। GJIIF, व्हाई पीपल शुड विजिट? मतलब देखो, वापस बोलता हूँ, जितने भी कारपोरेट्स कंपनी है साउथ के ही हैं, जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट्स कंपनी, जो नाम ले लो, GRT, जॉय आलुकास, जोस आलुकास, मालाबार, ललिता, सारवना, जितने भी, मैं कम नाम, तंगमईल ज्वेलरी, ऐसे मतलब जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, ये पूरा साउथ के ही हैं। तो साउथ में एक बहुत बड़ा शो होना जरूरी भी है, और रिटेल हब तमिलनाडु है, चेन्नई है, तो यहाँ करना इसका इससे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ क्या है, चेन्नई में जो होटल्स, जो अपना जो ट्रेड सेंटर के नज़दीक में काफ़ी लॉजिस्टिक के लिए बहुत सारा होटल्स है, लोगों जो भी बाहर से आए तो रुकने के लिए। ये फैसिलिटी बहुत कम, हर सिटी में बहुत कम है, बहुत दूर दूर में होटल्स है, या ट्रेड सेंटर जैसे बड़ी बड़ी जगह नहीं है, जगह है तो गांव से बहुत दूर है, ये सब तकलीफ। चेन्नई के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अभी चेन्नई ट्रेड सेंटर तो करीब 10, मिनिमम 10 से 12 बड़े बड़े होटल्स इसका आजू बाजू 3-4 किलोमीटर में है। तो यहाँ शो करना बहुत ज़रूरी भी है, और लॉजिस्टिक भी बहुत अच्छी है, और फ्लाइट का कनेक्टिविटी बहुत टॉप क्लास है। एयरपोर्ट एकदम नज़दीक, 10-15 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। तो कुल मिला के कन्वीनियंस है सबके लिए। बिल्कुल। और जब चालू किया, बहुत छोटा से चालू किया, करीब 15-20 स्टॉल ही था, आज 300+ स्टॉल में हम मतलब पहुँच गए हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक बुक आपकी कोई फेवरेट बुक है जो कभी कभी आप, पता नहीं मुझे पढ़ने का आपको कितना शौक है, लेकिन अगर शौक है, बहुत शौक है, तो एक बुक आपकी कौन सी फेवरेट है जो आपको इंस्पायर किया आपकी ज़िंदगी में? नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ तो कभी कभी लेके तिरुकुरल, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा है, तिरुकुरल को मैं कभी कभी लेके देखता हूँ इसे रेफरेंस के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ का இப்படி சொல்லுவாங்க, 133 அதிகாரம், ஒரு அதிகாரத்தில் 10, 1330 குறள் இருக்குது, எல்லா விஷயங்களும் அதில் இருக்குது। मतलब उसमें 133 भाग है, एक भाग में 10 पोएम है, 1330 पोएम उसमें लिखा है। उसमें हर चीज़ लाइफ का क्या चाहिए वो सारा चीज़ उसमें है। आप
वो एक बार आप समझ लिया तो लाइफ में आपको और कोई चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लाइफ में बढ़ने के लिए हर चीज़, परिवार से लेके, व्यवहार से लेके, दोस्ती से लेके, हर चीज़ वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं वही पढ़ता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब वो मैं कभी भी साथ में भी रखता हूँ, नहीं तो ऑफिस में भी मेरा कैबिन में है, मैं कभी उसको भी रीड कर लेता हूँ। Okay. So Jayanti bhai, now we'll go for a fire round questions. Okay? 3 Yeah. क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उसमें फटाफट आपको आंसर देना है। ऊपर एसी चल रहा है, आप चिंता मत करो, जितना फायर रहेगा उतना उससे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो फायर के ऊपर ऐसी है अभी। जयंती भाई, हु इज योर इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ? 1 पर्सन। यस, ये बहुत मेरा लाइफ में, या मेरा जो चीज़ में एक ही है, राजेंद्रन सर, जीआरटी का जो चेयरमैन है वही है। ही इज माई रोल मॉडल। मैं उसको देख के बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ, बहुत सारा। मैं बोला हूँ ना, लाइफ में उनसे कोई आधा घंटा बैठ के बात कर लिया तो लाइफ में बहुत बड़ा मतलब उसका अच्छा टाइम आ जाएगा, क्योंकि उनका इतना जो उन लेवल है, लेकिन कभी भी उसका जो लैंग्वेज में या उनका एटीट्यूड में, उनका बात में, आवाज़ में कभी भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा भाई इतना बड़ा है करके। डाउन टू अर्थ, ये मेरा रोल मॉडल है। हम्बलनेस और गुड ह्यूमन, बस भगवान नहीं है तो भगवान की जगह में उनको रख सकता है। क्या बात है, तालियां हो जाए जोरदार। जयंती भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन, देन विल गो फॉर Q&A बिकॉज टाइम इज लेस। जयंती भाई, 1 थिंग यू वांट टू टेल टू द यंगर जनरेशन, आज की यंगर जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी काम करो, कोई जरूरी नहीं भी ज्वेलरी करना, जो काम कर रहे हो उसमें फोकस रखो। हर जगह पे दिमाग में वही रहना भाई, फोकस। कुछ भी करो, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चलो, वो इंडस्ट्री और कोई इंडस्ट्री में चलो, लेकिन जो काम करते हो वो काम में बहुत फोकस करो, ये मेरा कहना है। आज का जो छोटे जो उम्र है उनका बहुत बड़ा एम्बिशन रहता है, लेकिन फोकस नहीं है। एम्बिशन अलग है, फोकस अलग है। वो उसका लाइफ पूरा हवा में रखता है एम्बिशन के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ, कॉमन सेंस और फोकस जरूरी है। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रैक्टिकल लाइफ, कॉमन सेंस एंड फोकस, द 3 सूत्रास फॉर द यंग जनरेशन। जयंती भाई, अभी आपका जो एक्सपेंशन चल रहा है, इतने साल तो हमने देखा छैलानी ज्वेलरी मार्ट चला, फिर आपने चांदी का किया, अब मेरे हिसाब से आपका 2 ब्रांड और फेडी और लिली, ये 2 ब्रांड आपके आ रहे हैं। बहुत हाईली एक्सपेंशन हो रहा है। फर्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सपेंशन? सेकेंड, इन हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी स्टोर्स मोर विल कम, एंड व्हाई दिस इज नीडेड? मैं सबको यही बोलता हूँ, समय के साथ चलो। आज का समय में कंज्यूमर्स या यंगस्टर्स या कुछ भी समझो, उनको क्या चीज़ ज़रूरत है और 10 साल के बाद क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, 20 साल के बाद क्या चीज़ का ज़रूरत है, ये सोचो। उसके हिसाब से आपका एक्सपेंशन नहीं, कुछ भी काम करना है उसके साथ चलो। आज से 30 साल के पहले कोडक कंपनी था, आज नहीं है। सॉलिटर टीवी था, वो नहीं है। एम्बेसडर कार था, वो नहीं है। फिएट कार नहीं था, क्योंकि उनका समय के साथ उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। हम जरूरी है कि भाई हर चीज़ का एक अपग्रेड रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे बिजनेस हो या परिवार हो। आज का जो यंगर जनरेशन का क्या ज़रूरी है, क्या नीड है, 2 चीज़ है। एक तो सोने का दाम बढ़ गया तो लाइट वेट ज्वेलरी और 18 कैरेट ज़्यादा मतलब लेके आओ, प्लस सोने का दाम बढ़ गया और उनका परिवार में बड़े बड़े ज्वेलरी पहनने का इच्छा है तो उनका चांदी का जो ज्वेलरी है उसमें ध्यान रखो। तो उसके वजह से हम 2 ब्रांड अभी क्रिएट किए हैं, लिल्ले और फिदा। लिल्ले में आके 18 कैरेट ज्वेलरी है, 18 कैरेट ज्वेलरी लाइट वेट ज्वेलरी है, और फिदा में पूरा आके सिल्वर ज्वेलरी गोल्ड प्लेटेड में है। तो दोनों ही हमारा जो फोकस है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 200 स्टोर्स लेके आना। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और ये जैसे आपने बोला कि ये ज़रूरत था, बिकॉज आज का जो जनरेशन को जो चाहिए आपने आगे के लिए तैयारी की है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, देन विल गो फॉर Q&A। आगे का इतना बड़ा एक्सपोजर होगा, 5 साल में आपके 200 स्टोर का आप टारगेट लगा रहे हैं। IPO का तैयारी चल रहा है जयंती भाई? मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई, समय के साथ चलो। उस टाइम में क्या जरूरत पड़ेगा उसमें हम काम कर लेते हैं।
आज हमारे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, डाउन द लाइन हाल 3 साल के लिए हम उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और 3 साल के बाद वो ज़रूरत पड़ा तो उसमें भी हम जा सकते हैं। लेकिन आप जाना चाहते हैं जयंती पे, वो बात है। इसमें मैं चाहना सब कुछ नहीं है। 10 साल के पहले मैंने नहीं सोचा भाई मैंने आके मेरे पास इतना बड़ा एक्सपेंशन रहेगा करके, मैं तो सिर्फ बिजनेस चालू किया। आज समय के साथ मैं वैसे देखो, मैं आके पानी जैसा हूँ, पानी आप कहीं भी डाल दो नीचे, वो ढाल के साथ में चलते रहेगा, वो कभी खड़ा नहीं होता है। जैसे ही मैं हूँ ढाल के साथ में वैसे ही जाता रहता हूँ, मेरा रास्ता आगे आगे बनते रह जाएगा, बस यही मैं जयंती भाई से हम सबको एक डिप्लोमेटिक लीडर कैसे बनना है वो आप सीख सकते हो। मैंने उनको पूछा ही आईपीओ आएगा तो वो उनके लिए मेरे को घुमा के इस तरीके से उस तरीके से सब बता दिया। लेकिन जयंती भाई फ्यूचर में आ सकता है, मे बी ये वापस एक और डिप्लोमेटिक। एनी हाउ, थैंक यू जयंती भाई, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जयंती भाई छलानी। I think we had a great session, but we have 3 questions we are going to take quickly. The question should be to the relevant to this program. Anybody who want to ask the question, I would request to raise your hand and ask the question. Good afternoon, sir. So, my question is like, I'm also similar to you, the second generation businessman of the family. So, that what will be the one thing that second generation or a young businessman should develop in his life to success in the business? Like you, like, or second generation businessman, இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும், like develop பண்ணிக்கணும் டே பை டே. ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம், காமன் சென்ஸ். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, காமன் சென்ஸுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இன்றைக்கி கோல்டு விலை வந்து $2610 ஆகிடுச்சு, இல்லை 76க்கு போயிடுச்சு, எல்லாம் போயிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் கோல்டு வாங்கணுமா வேணாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணோம். இதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? காமன் சென்ஸ் வேணும். அது இருந்தால் போதும். என்ன செய்கிறீங்களோ அதில் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். என்ன வேணால் செய்யுங்க, நீங்கள் ஜுவல்லரி தான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் பில்டராக இருக்கலாம், இல்லை ரியல் எஸ்டேட் பண்ணலாம், பட் செய்கிற வேலையில் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி வரும். பாசிட்டிவ் திங்க் நிறைய பண்ணோம். ஒருத்தர் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு யாரோ எதிரால் ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு கத்தி வச்சுருக்காருன்னா, இது வச்சு நம்மளை குத்திடுவாரா, இது இருந்தால் நம்மளை கிழிச்சிடுவாரா, இப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அவர் கத்தி வச்சுருக்காருப்பா, அவ்வளோதான், என்கிட்ட பென் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், செய்கிற வேலையில் காமன் சென்ஸ் இருக்கணும். அது இருந்தால் போதும். தேங்க்யூ. So thank you everyone. Everyone, I would like to make you to stand and give a standing ovation to the Jayanti Bhai Chalani. A big round of applause for the star of the evening. I thank all the team of GJIAF. I thank Manoj for getting this beautiful venue. I would thank Vivek for Jewelbus, for streaming partner, media partner, AOJ, Sumesh Bhai, Parmesh, whole team of GJIAF and MJDTA Association for making this program a grand success. Thanking everyone for giving me this opportunity to hear to the man by himself. A big round of applause